Hello guys and welcome to Manual Education. In this session we will be seeing a detailed paper analysis and paper solution of NCHM CT JEE 2019, the English section. So guys, if you are preparing for NCHM CT and trying to target top IHM colleges, then you can contact us. We provide live coaching as well as classroom coaching. We provide you with books, many shortcut tricks to solve your paper faster, and we also conduct doubt sessions to solve your all kinds of doubts. We also give you recorded videos of your lecture. Not just this, we provide you with topic tests, mock tests. We have an ocean of over 10,000 plus questions. Besides, your mentors are always connected with you on WhatsApp group, where they help you with all your doubts as and when they arise. So guys, what are you waiting for? If you want to book your seat with us right now, you can do that by calling us on 8828 581454. And if you want classroom coaching, then we have our centers in Mumbai at Dadar, Borivali and Vasai. You can call on this number to visit our centers. For more information, you can log on to this website. So guys, I know there are many paper solutions available out there, but the trick is to solve them in 20 to 30 seconds. The questions are to be solved in this period of time because we do not have one thing in our exam, that is time. तो ये कैसे करना है and what is the approach that our toppers have adopted, that is what I'm going to tell you in this video. So without any further delay, let us get started. The first question is identify error. तो error कौन से part में है? Now these sentences are given jumbled, तो हमें एक तो पहले इन्हें अच्छे से arrange करना है and फिर error देखना है. So obviously it will start with we should always side with those who are true and unselfish and work for others. ओके अभी यहाँ पे देखते से ऐसे लगेगा कि अनसेल्फिश गलत है, लेकिन अनसेल्फिश गलत नहीं है. द मिस्टेक इज़ इन वी शुड ऑलवेज. इट शुड नॉट बी वी शुड, इट विल बी वी शाल. अगर हम सेकेंड पर्सन यूज़ करते हैं ना, यू ही शी, तब ये शुड बराबर है. लेकिन जब मैं आई या फिर वी यूज़ करती हूँ तो क्या आना चाहिए हमारा ऑक्सिलरी वर्ब? शाल. सो द आंसर इज डी. वी शुड नहीं, वी शाल. नेक्स्ट, नॉट ओनली द डॉक्टर्स बट ऑल्सो द नर्सेज इज़ वेरी काइंड टू द पेशेंट. ये तो बहुत ही एविडेंट एरर है. यहाँ पे क्या दिया है? नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस. सो बट ऑल्सो के बाद ये क्या आया? नर्सेस, विच इज़ प्लूरल. तो यहाँ पे इज़ वेरी काइंड कैसे आएगा? नर्सेस अगर प्लूरल है तो यहाँ पे आना चाहिए आर वेरी काइंड. हेंस आर एरर इज इन पार्ट डी. A great many student has been declared successful in the class, right? अभी देखिए यहाँ पे a great many students have होना चाहिए ना. A great many students have. अगर हम many पहले लेते तब student होता, many a student, बट जब हम many बाद में ले रहे हैं तो it will be a great many students have been declared successful in the class. So the error is in part D. Next, where will it start? Just when Alfred Nobel's discoveries and anti-Nobel campaign were started in France, which were ओके तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली ये दो सेंटेंसेस मुझे लिंक लग रहे हैं. जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड्स एंड एंटी नोबल कैंपेन वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे. ओके नाउ यहाँ पे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन नहीं आएगा. जब वन ऑफ हम बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों में से तुम एक रिच मैन हो. सो वन ऑफ द के साथ हमेशा मैन आएगा. वन ऑफ द रिचेस्ट मैन नहीं, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन. सो द एरर विल बी इन पार्ट सी. अगेन पहले तो ना आप ये सेंटेंसेस को देख के एक लॉजिकल उसका मीनिंग बनाने की ट्राई करो तो आपको वो ईजी पड़ेगा. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? सबसे पहले एंशियस टू हियर of his illness, I went to visit him but was relieved to see that he was more better. So देखो he was more better आएगा या he was much better आएगा? he was more better नहीं होता because better in itself is a comparative degree. तो comparative degree के पीछे वापस और एक comparison डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. So it will be he was much better. So the error is in part D.
In each of the following sentences, out of the given alternatives, choose the one which is nearest in meaning to the underlined word in the sentence. The flat has been refurbished recently. अभी ये refurbished का meaning क्या है? Refurbish हुआ मतलब renovate हुआ है. So the answer will be renovated. During medical emergencies, when a delay of even 1 minute can cause the death of a patient, the doctor has to be decisive. डिसिसिव मतलब क्लेवर तो नहीं, क्लेवर तो होगा, क्रूएल तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा. इट विल बी डॉक्टर हैज़ टू बी फर्म. ग्रेजुएशन डे इज़ अ मोमेंटस डे फॉर मोस्ट स्टूडेंट. मोमेंटस मतलब इम्पॉर्टेंट डे रहता है ना, डिज़ास्ट्रस तो नहीं होगा. ग्रेजुएशन इज़ अ गुड डे, सो इम्पॉर्टेंट डे. ऑप्शंस देख के वो ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए जो बिल्कुल ही आपको करेक्ट नहीं लग रहे हैं. द फूड सर्व्ड इन द रेस्टोरेंट इज़ नॉट फ्रेश. जो फूड फ्रेश नहीं होता उसे हम स्टेल बोलते हैं. डिकेड नहीं, डिकेड तो मतलब एकदम ही एक्सट्रीम वर्जन हो गया. रॉटन एंड डिकेड आर एक्सट्रीम वर्जन. ओल्ड थिंग्स होती है, फूड नहीं होते. फूड जब ओल्ड होता है उसे हम स्टेल बोलते हैं. फॉर अ लॉट ऑफ बॉयज़ इन इंडिया, बिकमिंग अ सक्सेसफुल क्रिकेट स्टार हैज़ बिकम एन ऑब्सेशन. अर्लियर इट वॉज अ हॉबी एंड समटाइम्स पैशन. तो ये ऑब्सेशन को हम बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन ऑल्सो. ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेरोशियस रूलर रूल्ड ऑटोक्रेटिकली व्हेन इन पावर. अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, अपोजिट मीनिंग पूछा है. ठीक है, अभी जब पावर में था उसने ऑटोक्रेटिकली रूल किया, मतलब ऑब्वियसली नेगेटिव टर्म है, तो हम नेगेटिव टर्म्स तो अपोजिट में नहीं देंगे. तो डेंजरस नेगेटिव है, बार्बरस नेगेटिव है, फियर्स भी नेगेटिव है. जेंटल इज़ द ओनली पॉजिटिव टर्म, सो यहाँ पे आंसर आएगा जेंटल. नेक्स्ट अगेन अपोजिट. अ स्टबर्न प्रोफेशनल. अभी स्टबर्न का तो मीनिंग हमें पता है, ज़िद्दी, जो अड़ा रहता है. प्रोफेशनल फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन हिज और हर जॉब. तो अगर वो ज़िद्दी है तो उसका उल्टा है फ्लेक्सिबल, जो चेंज होते हैं. अपोजिट्स. Clarity in speech is helpful for employees of hotel industry because guests can understand them easily. Clarity मतलब एकदम अच्छे से clear होने चाहिए. उसका opposite होगा confusion. A class in schools of the metropolitan cities like Mumbai and Delhi has heterogeneous type of students. Heterogeneous मतलब अलग अलग, उसके उल्टा है homogeneous मतलब same type, एक ही type. He was asked to accelerate the pace of work. Accelerate करना मतलब फटाफट करना, उसका उल्टा होगा slacken मतलब slowly काम करना. Now the next question is choose the option which is substituted for the word. So this is a one word substitution. A person who does not express himself freely, ये तो आपको पता होगा, इन्हें हम बोलते हैं introvert. और जो खुद को freely express कर पाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Write in the comment section. वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स. जो बर्ड्स में स्पेशलाइज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट. अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क और नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, इसे हम बोलते हैं पेसिमिस्ट. एंड ऑप्टिमिस्ट वो है जो अच्छी साइड देखता है. अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल कंट्री एज इज ओन, दिस इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन. जिसे लगता है अपनी पूरी कंट्री एक ही है. ये एक मैगजीन भी है, राइट. A professional rider in the horse course is called a jockey. Now, the next question is, out of the alternatives, idioms and phrases underlined, choose one which expresses the meaning. All the residents of the colony painted the town red. तो टाउन को रेड पेंट किया मतलब बहुत ही नॉइजीली कुछ सेलिब्रेट किया. अब बहुत से गानों में भी ये सुनोगे, पेंट इट रेड. इट मीन्स टू सेलिब्रेट विथ फुल जोश. द टीचर टर्न द ब्लाइंड आई टू द मिस्chievous एक्टिविटीज़. ये एक इडियम और फ्रेज़ है जो हम बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं. टर्न द ब्लाइंड आई मतलब देखा नहीं. प्रिटेंड नॉट टू नोटिस मतलब इग्नोर किया. द चेयरमैन पुल्ड अ लॉन्ग फेस. अभी अगर आपको इसका मीनिंग भी पता नहीं है तो भी आगे का सेंटेंस देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. When the house did not accept the suggestion put forth by him. अगर हमने कुछ सजेशन दिया है और अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो हम क्या होते हैं? गुस्सा होना चाहिए या हम डिसअपॉइंट होंगे. जो ऑब्वियस रिएक्शन इज़ डिसअपॉइंट. हमें थोड़ा बुरा लगेगा कि हमने जो बोला वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. तो द आंसर इज़ डी. ही इज़ वेरी रिच सो हेल्पिंग हिम विथ मनी इज़ लाइक कैरिंग कोल्स टू द न्यू कैसल. अभी देखो मतलब वो बहुत रिच है, उसको अगर हम हेल्प करते हैं तो इट इज़ लाइक जिसके पास बहुत है
समथिंग व्हेन इट इज़ प्लेंटीफुल, उसको और पैसे देना. रोहन इज सो स्पॉन्टेनियस दैट ही ऑलवेज रिप्लाइज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट. स्पॉन्टेनिटी की बात हुई है. स्पॉन्टेनियस इज विदाउट डिले. नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग्स देखने हैं. तो अकोमोडेशन का करेक्ट स्पेलिंग इज ACCOMMODATION. अगेन कमिटी का स्पेलिंग इज COMMITTEE. तो ये कुछ ऐसे डबल वाले जो वर्ड्स हैं वो आप याद रख लेना. इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर देम. ब्यूरोक्रेसी, ब्यू मतलब देखो ब्यूरोक्रेसी में पहले तो ब्यू आएगा. तो ये ना ब्यू हम बोलते हैं लेकिन EU नहीं है, इट्स जस्ट बू. ओके, इट्स नॉट ब्यू. सो दैट्स वाई BUREA, ब्यूरोक्रेसी. सो द आंसर इज D. नेक्स्ट, अक्करेंस. अक्करेंस में हम बोलते हैं तभी ही डबल सी आता है, राइट. अक्करेंस, सो OCCU. फिर अक्करेंस में भी डबल आर आता है, सो इट इज D. नेक्स्ट इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सैटेलाइट. सैटेलाइट में देखो, आप जब सैटे बोलते हो तो आप सैटे नहीं बोलते, यू से सैटे. सो CATE. ओके, नॉट डबल टी. सैटेलाइट, बट सैटेलाइट जब आता है तो इट इज सैटेलाइट, सो डबल एल आता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट कि अगर आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी आता है ना तो आप उसके ऊपर से भी गेस कर सकते हो. फिर अभी इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, मतलब बाकी सब वर्ड्स करेक्ट रहेंगे, बस किसी वर्ड में गलती रहेगी. ये वाले फाइंड करना इजी है क्योंकि आपको बस आपके आँखों को ट्रेन करना है. अगर आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं तो आपकी आँखें आपको खुद बता देगी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है. जैसे कि इसमें डेफिशिएंसी में प्रॉब्लम है. डेफिशिएंसी में DEFI आएगा, यहाँ पे E नहीं आएगा. फिर इन दिस वन मटन. ओके, इट्स नॉट MUTTEN. ठीक है, इट इज़ व्हाट MUTTON, राइट. या फिर अगर इनको मिटन लिखना है तो मिटन भी चलेगा, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. नेक्स्ट, एंकल. यहाँ पे देखिए एंकल. एंकल हम बोलते ऐसे हैं लेकिन इट इज़ ANKLE, नॉट ANKEL. तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या है. ऐसे सब वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, ढूंढ के रखने हैं, क्योंकि अगर मिसस्पेल वर्ड्स में ये पूछा जाए तो आपको इजी पड़ेगा. नेक्स्ट इज मिस्टीरियस. नाउ यहाँ पे मिस्टीरियस में देखिए MY होना चाहिए, MYSTER, नॉट MIS. फिर एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पे तो ठीक लग रही है. एंडेंजर नहीं होता, इट इज़ ENDAN, डेंजर. नॉर्मल डेंजर के पहले N लगाना है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ मिसस्पेल्ड वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं. आगे बढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. शी वॉज बीटन डैश अ बैट. देखो, हम जब भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स को बताया है, वेन एवर वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट हमें विथ यूज़ करना है. तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया ना उसका, जिसको उसने यूज़ किया. सो शी वॉज बीटन विथ अ बैट. द लिटिल गर्ल वॉज स्कैर्ड डैश क्रॉसिंग द बिजी रोड अलोन. स्कैर्ड ऑफ, देखो ऑन क्रॉसिंग तो नहीं होगा, इन एट नहीं, ऑफ क्रॉसिंग द रोड. उसको डर किस बात का था. द लिटिल बॉय स्टूड डैश द ट्री. द लिटिल बॉय स्टूड अंडर द ट्री. ट्री के नीचे. विद इन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अंदर जाके खड़ा हो गया. डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री डिमांड्स डिसिप्लिन एंड डैश टू द रूल्स. अधेरेंस टू द रूल्स. अधेरेंस मतलब फॉलोइंग द रूल्स. ठीक है, देखो फॉलो भी ठीक था लेकिन फॉलो टू द रूल्स नहीं होता, तो इसलिए एधरेंस करेक्ट है क्योंकि प्रपोजिशन हम देख रहे हैं. कोलंबस डैश अमेरिका. देखो इन्वेंट करने के लिए अमेरिका कोई इन्वेंशन तो है नहीं, क्रिएट तो वो नहीं कर सकता एक पूरी की पूरी कंट्री या आइलैंड, राइट. फाउंड अमेरिका एंड डिस्कवर्ड अमेरिका में डिस्कवर्ड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी थी, उसने उसको डिस्कवर किया, उन्होंने उसे डिस्कवर किया. नेक्स्ट, 50 रुपीज़ डैश अ लार्ज अमाउंट. मैंने ये हमेशा बोला है, जब ऐसे आपको अमाउंट दिखती है ना तो यहाँ पे जो भी आएगा इट इज़ नॉट फॉर 50 रुपीज़, इट इज़ फॉर अमाउंट. तो अगर अमाउंट आपका सिंगुलर है तो ये वर्ड भी सिंगुलर होगा. सो 50 रुपीज़ वॉज अ लार्ज अमाउंट. देखिए वर्ड तो प्लूरल हो गया, हैव, आर, ये तीनों प्लूरल है. ओनली सिंगुलर वर्ब हियर इज वॉज अ लार्ज अमाउंट.
second theory about Homo sapiens agrees that our dash language evolved as a means of sharing information about the world. हमारा यूनिक लैंग्वेज है, हमारा एक्सपर्ट लैंग्वेज फैंसी या मेलोडियस तो नहीं है, इट्स नॉट अ सॉन्ग, यूनिक लैंग्वेज है. ऑलवेज कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के ही रहना है हमें. द ग्लास डैश इनटू स्मॉल पीसेस. यहाँ पे जो भी बुक पढ़ने की जैसे आदत है आपको ये अपने आप आ जाएगा. द ग्लास आता है तो ग्लास क्रम्बल नहीं होता, ग्लास शैटर होता है. द ग्लास शैटर्ड इनटू स्मॉल पीसेस. He was in a hurry and just dashed the letter. Glanced over the letter. At the letter नहीं, क्योंकि उसको हरी थी, मतलब उसने वो लेटर जो है वो पूरा जस्ट ऐसा ऊपर ऊपर से देखा, तो ही ग्लैंस्ड ओवर द लेटर. एट मतलब एक नज़र दी और चला गया, पर वो घाई में था फिर भी उसने जस्ट लेटर गो थ्रू किया. सो नॉट थ्रू द लेटर. ग्लैंस होता है तो इट विल ईदर बी ओवर और एट. कैन यू फिनिश द टास्क डैश टुमारो. यहाँ पे इन टुमारो रॉन्ग है, विथ और ऑन टुमारो भी रॉन्ग है. बाय टुमारो, कल तक क्या तुम इसे फिनिश कर पाओगे. ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैसेज. तो पैसेज पढ़ लेते हैं पहले. Dusk had fallen by the time we all came out of the movie theatre. We ate a few samosas and drank up a cup of tea, each from a nearby restaurant. After which my friends dropped me off at the bus stop. I was the only one who had to catch a bus to get home. They left when I was able to find the bus that I was supposed to board. It had been a great day for me, my first outing with my friends in Sambalpur. I was happy and excited. However, unlike other days on that evening, I was boarding a late bus. Usually by that time I would be at home. That evening I expected to reach home only by dinner. There were only a handful of people inside the bus. Most of the seats were empty. As the first few rows were not so good for long distance travel, I found myself a seat at the rear of the bus. It was on the right side of the aisle next to the window. I slid open the window pane to let the fresh air in and started to look outside. The street lights were on and so were the lights in the small shops. Inside the bus, it was close to dark. There were lights installed on the roof of the bus, but since the insides of the lampshades were full of dirt and dead insects, most of the light was getting blocked, creating a faint glimmer. Okay, very beautiful passage, isn't it? Alright, where was the author dropped by his friends after the movie and snacks? देखो ऐसा पैसेज अगर आ गया ना आपको तो वाह वाह, मतलब आपको पूरे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. उन्होंने आपको दिया है कि फ्रेंड्स ने ऑथर को बस स्टॉप पे ड्रॉप किया एंड फिर पूछ रहे हैं कहाँ पे ड्रॉप किया. तो एट द बस स्टॉप. व्हाट डिड द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स हैव एट द आफ्टर द मूवी. तो वो भी यहाँ पे दिया है. फ्यू समोसाज एंड अ कप ऑफ टी. सो समोसा एंड टी. अच्छा है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ही ईजी. By what time did the author expect to reach home? By dinner time. क्योंकि यहाँ पे दिया गया था कि यूजुअली वो जल्दी जाते थे, लेकिन आज उनको लगा कि they will reach by dinner time. Dusk has fallen by the time. What is the meaning of dusk? Dusk मतलब ना जब शाम होती है, थोड़ा सा आफ्टर इवनिंग ऐसे बोल सकते हैं. So darker stage of twilight is the right. What do you understand by the word aisle? आइल मतलब एरिया बिटवीन द रोज ऑफ द सीट्स. ऐसा होता है ना बस में, यहाँ पे सीट्स है, यहाँ पे सीट है और बीच का जो पैसेज रहता है उसे एरिया बिटवीन द रोज. ओके, ये नेक्स्ट. ओके, दिस इज अगेन अ न्यू पैसेज. लेट अस रीड इट. Everybody wants success, but not all achieve it. One of the reasons is that there are people who do not exert themselves but depend on others. But self-interest is the best incentive to work. If this interest does not prompt us to do our work for our own good, we cannot expect others to sacrifice their interest to bring that good to us. Moreover, a work done for others is not generally done so well as a work done by a person for himself. Besides, dependence on others destroys self-confidence and does not allow the faculties to develop. The result is that we fail in life. Indeed, no god or goddess will come to our help if we do not help ourselves.
This reminds me of a famous Marathi phrase, असेल हरित देल खाटल्यावरी. Well, what do you consider to be the central idea of this passage? ये passage क्या बोल रहा है कि खुद को help करो. Self help is the best help, right? This is also a phrase. Next, what is one of the reasons according to the passage the people do not achieve success? क्योंकि उनके सेल्फ मोटिवेटेड एफर्ट्स नहीं रहते. अगर खुद के लिए काम करोगे तो अच्छे से काम करोगे. व्हाट इज़ द बेस्ट इंसेंटिव टू वर्क? सेल्फ इंटरेस्ट. खुद के लिए काम करो. आपको ना जब आप पढ़ते हो तो पूरा पैसेज अच्छे से समझ के लेना है. इट विल बी वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चंस बिकॉज इफ़ यू कैन सी NCHM के आपके RCs इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते. दे आर वेरी ईजी, राइट? व्हाट कैन वी नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू वाई कैन वी नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू सेक्रीफाइस देयर इंटरेस्ट टू ब्रिंग गुड फॉर अस? क्योंकि पीपल हैव देयर ओन इंटरेस्ट. खुद के लिए काम करेंगे, आपके लिए क्यों काम करेंगे? सिलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सर्ट. एक्सर्ट कहाँ पे है? हु डू नॉट एक्सर्ट देमसेल्व्स. ओके, तो लोग जो खुद को एक्सर्ट नहीं करते. एक्सर्ट करना मतलब हार्ड वर्क करना, आउटस्ट्रेच करना खुद को. चलो, लास्ट पैसेज. Organized retail has fueled new growth categories like liquid hand wash, breakfast cereals, and pet foods in the consumer goods industry, accounting for almost 50% of their sales, said data to the market research firm Nielsen. The figures showed some of the new categories got more than 40% of their business from modern retail outlets. The data also suggests how products in these categories reach the neighborhood kirana stores after they have established themselves in the modern trade. While grocers continue to be an important channel for the new and evolving categories, we saw an increased presence of high-end products in modern trade. Example, premium products in laundry detergents, dishwashing, car air fresheners and surface care. Organized retail का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, स्टार्टिंग ही हुई है. ऑर्गेनाइज्ड रिटेल हैज़ फ्यूल्ड न्यू ग्रोथ. इट इज़ बेसिकली अबाउट द शॉपिंग मॉल्स, राइट? वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता है ना, रिटेलिंग ही चल रही है लेकिन अच्छे से फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सब एकदम अच्छे से रहता है. एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट दैट इज़ नॉट फाउंड इन द पैसेज. तो पैसेज में देखो, डिश वॉशिंग की बात हुई है क्या? डिश वॉशिंग की, हाँ. लॉन्ड्री डिटर्जेंट की बात, हाँ. कार एयर फ्रेशनर, हाँ. तो ऑब्वियसली डिज़ाइनर क्लोथ्स की बात नहीं हुई है. बहुत ईजी था. An example of a new type of retail product that reaches local kirana stores after selling well in the organized retail business is, मतलब ऑलरेडी पहले मॉल में बिकता है एंड फिर बाकी किराना में. उसके लिए हमें कौन से एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे? तो द एग्जांपल्स वर गिवन हियर. या लिक्विड हैंड वॉश, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पेट फूड. सो D is our answer. According to Nielsen, what percent of total sales for organized retail come from new? अरे बाप रे, this is so easy. यहाँ पे दिया है 50%, right? ये देखिए. The last question. What does the phrase high end in passage mean? High end देखिए यहाँ पे है. We saw an increased presence of high end products in modern trade. High end मतलब एकदम expensive products. आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे टाइप के पैसेजेस आते हैं, हमें कैसे पैसेजेस में से आंसर्स ढूंढने हैं. वैसे तो ये बहुत ही ईजी पैसेजेस थे, लेकिन कैसे पैसेज को समझना है एंड आंसर्स फटाफट लोकेट करने हैं. ऑल्सो हमने बहुत सारे स्पेलिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एरर डिटेक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये सब देखा. So if this video has been helpful to you guys, do share it with your friends who are also giving NCHM CT JEE. And if you are preparing for hotel management NCHM CT JEE, then you can contact us. We provide live classes, classroom coaching, books, mocks, shortcut tricks and much more. You can book your seat with us for online or live coaching by calling us on 8828581455. And we also have our classroom coaching in Mumbai at Borivali, Vasai and Dadar. You can contact on these numbers to visit our center. For more information about us, you can log into this website. And yes guys, do follow us on Instagram and like and share our content on Facebook and subscribe on our YouTube channel so that you get more content from us. Also do join our Telegram handle. All the links will be in the description below.
ऑल्सो आपके लिए मैं और ऐसे पास्ट पेपर्स जो हमने सॉल्व किए हैं इंग्लिश के, रीजनिंग के, वो सब भी लिंक कर दूंगी हमारे इस वीडियो के एंड में. सो गाइज मेक श्योर कि आप वो सब वीडियोस भी चेकआउट कर लो, तो आपको वो हेल्पफुल होगा. एंड येस, एज आई सेड बिफोर, इफ़ योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर NCHM, then do share this video with them. Let us know how you like this video, and that was all from our side, guys. We'll meet you in the next session.